हेलो एंड वेलकम टू V-Learn वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। इस टॉपिक में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट साइकोलॉजी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी सेशन नंबर 4। पहले के 3 सेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेशन नंबर 4 फॉर द सब्जेक्ट साइकोलॉजी फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स। And in this session we will be discussing about how to become aware about the world around us. हमारे आसपास के जो दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर हम अपने आप को अवेयर कैसे बनाएं. The entire session is all about the same. The broad topics which we will be covering in this session number 4 is the vision, audition and the other senses. It means जो vision है, जो देखते हैं हम, audition जो सुनते हैं हम, या फिर जो other senses होते हैं हमारे, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे. Then we will be specifically focusing on the vision part. फिजिकल नेचर विजुअल स्टिमुलाई उसके बारे में जानेंगे. देन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई जो आंख होती है उसकी बनावट संरचना क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेटिना. आंख के अंदर एक चीज होती है रेटिना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेंसरी प्रोसेस अदर देन द विजन. विजन के अलावा और हमारे जो सेंसरी प्रोसेसेस हैं वो क्या है और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है. And then we will be also discussing about the mind, brain and the consciousness. Mind, brain and the consciousness को भी डिस्कस करेंगे हम. अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, दिस ऑब्जेक्टिव फॉर द सेशन विच वी कैन से एज एन आउटकम फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स. हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स की. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द ऑर्गेनिज्म गैदर्स इंफॉर्मेशन about the external and internal world. How the organism is gathered the information, external and internal world के बारे में कैसे information gather करता है organism, that we will be also explaining. And the physical nature of stimuli and how these are received and processed by the sensory level. जो physical nature of stimuli का वो कैसे receive करता है और process करता है sensory level को, उसको भी describe करेंगे. And to analyze the relationship between the physical stimuli and the psychological responses. हम उस relationship को भी analyze करेंगे जो physical stimuli और psychological responses के बीच में होता है. Let's start with the vision, audition and other senses. Vision, audition and other senses क्या है? The sense organs, 10 in all, constitute the information gathering system. Sense organs जो total 10 होते हैं वो constitute करते हैं information gathering system को. The sense organs encode that is called as the pre-process information, and encoded information is transmitted to the specific area in the brain where encoded message is decoded and the further process which leads to perception. Sense organs basically encode करता है message को, encoded message information बनकर transmit होता है specific area, brain के specific area से. then the encoded message को decode करता है brain, process करता है and further it leads to the perception. हम percept करते हैं, perceive करते हैं कि क्या होने वाला है. If we talk about the sequence of processing of stimulus or information, सबसे पहले physical energy होती है. Physical energy ने उसको sense organs तक पहुंचाया, sense organs ने sense करके उसको pre-process किया, pre-process होने के बाद वो message encode हुआ, encode होने के बाद वो transduction हुआ brain तक, means transfer हुआ message brain तक, then फिर उसको decode किया गया, decode के बाद फिर processing हुई, processing के बाद फिर perception ने अपना काम किया और perception जब हमने अपना यूज किया then finally it comes to the response. Physical energy जो हमने grasp किया वहां से लेकर जो response हुआ हमारा उसके बीच में ये जो पूरा का पूरा मॉडल है जिसको हम कहते हैं this is the called as the sequence of processing of stimulus information, and this actually plays a very important role in any human behavior or action. बात करते हैं सबसे पहली चीज विजन की. विजन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं चीजों को सेंस करने के लिए, देखकर सेंस करने के लिए. द मोस्ट डेवलप एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन इज विजन. जो सबसे ज्यादा डेवलप है और जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं सेंस ऑर्गन्स में से, उसको हम कहते हैं विजन. विजन डोमिनेट्स ओवर द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर सेंसेस. विजन जो है वो डोमिनेट करता है बाकी दूसरे सेंसेस की मदद से. जो भी हमने इंफॉर्मेशन रिसीव की है उसके ऊपर विजन से रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन डोमिनेट करती है. एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं व्हाट वी सी हैज मोर इंपॉर्टेंस देन व्हाट वी हियर. उदाहरण बिल्कुल सामने आपके सामने कि जो हम सुन रहे हैं उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है कि हम क्या देख रहे हैं. विजन ऑलवेज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल देन व्हाट वी हियर एक्चुअली.
नाउ फ्रॉम हियर if we go to the structure of eye, कि एक्चुअली में आंख जो आई होती है उसकी संरचना बनावट क्या होती है. सो ह्यूमन आई बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स. जो ह्यूमन बीइंग्स की जो आंखें हैं वो 4 मेजर पार्ट्स कंसिस्ट करती हैं. जो पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं दी कोरेना. जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं दी इरिश. जो थर्ड पार्ट होता है उसको कहते हैं द लेंस. और जो फोर्थ पार्ट होता है उसको कहते हैं द रेटिना. So the cornea, iris, lens and retina. So the entire human eye consists of these four these four parts which can be called as the structure of the eye. So इसको हम आंखों के structure के अंदर जो 4 major part होते हैं वो cornea, iris, lens और retina उसके हिस्सा होते हैं. सबसे पहले बात की जाए अगर retina की तो the light, वो रोशनी that reaches the retina by passing through the anterior and posterior chambers. So वो रोशनी जो रेटिना तक पहुंचती है इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को पास करते हुए उस रोशनी को कहते हैं रेटिना. फाइन, वो रोशनी पहुंचने के बाद ही रेटिना काम करता है. सो फाइनली इट रीचेस टू द विजुअल रिसेप्टर. तो फाइनली वो विजुअल रिसेप्टर तक पहुंच जाता है एंड द रॉड्स एंड द कोन्स. द रिसेप्टर कन्वर्ट्स लाइट्स इनटू एनर्जी एंड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. जो रिसेप्टर है वो उस रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. जो रिसेप्टर है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है. सेंसरी प्रोसेस अगर विजन की बात करें, जो विजन के अलावा जो सेंसरी प्रोसेस होता है उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है ऑडिशन का. इट मींस आफ्टर विजन ऑडिशन इज यूज्ड मोर ऑफन देन एनी अदर सेंसेस. यानी आंखों के अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला जो सेंस है वो है ऑडिशन. So the auditory receptor in the ears responds to sound waves to produce neural signals. So जो auditory receptor होते हैं कानों में वो respond करते हैं, ears respond to the sound waves. वो sound wave के हिसाब से respond करते हैं ताकि neural signal को produce किया जा सके. And the sound waves have 2 important physical aspects, frequency and amplitude. So जो sound waves होते हैं उनके 2 important physical aspect होते हैं. पहला aspect होता है frequency और जो दूसरा जो aspect होता है उसको कहते हैं amplitude. जो sensory process है जिसको vision के अलावा हम कहते हैं sensory process other than the vision, it says the sound you hear from a jet aircraft engine or your pressure cooker is called as white noise. So जो वो आवाज जो आप किसी जेट एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलते हुए सुनते हैं या फिर आपके घर के प्रेशर कुकर से निकल कर आवाज आ रही है, इस आवाज को हम कहते हैं व्हाइट नॉइस. So the structure of the ear it has 3 divisions. So जो कान का जो स्ट्रक्चर होता है उसके 3 डिविजन्स होते हैं. पहला डिवीजन जिसको हम कहते हैं पीना एंड ऑडिटरी कैनल, आउटर ईयर जो कान का बाहरी हिस्सा होता है जिसको ऑडिटरी कैनल और पीना कहते हैं. उसके बाद कान के बीच में एक हिस्सा होता है जिसको मिडिल ईयर पोर्शन कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम कहते हैं. और जो कान का अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको हम इनर ईयर पोर्शन कहते हैं, इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ऑसिकल्स, नेमली मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स. फाइन. सो जो कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वो 3 स्मॉल छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है जिसका नाम है ऑसिकल्स, नेमली जिसका नाम हमने दिया है मालियस, इनकस एंड स्टेप्स. सो जो बेसिकली कान की संरचना होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है. सेंसरी प्रोसेस की बात करें फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जो विजन के अलावा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो अगेन द वाइब्रेशन ऑफ द ओवल विंडो क्रिएट्स वेव्स इन द फ्लूइड. सो जो वाइब्रेशन होती है ओवल विंडो पर वो क्रिएट करती है फ्लूइड के अंदर एक वेव, और जो वो वेव होती है ट्रैवल्स थ्रू द फ्लूइड एंड बेंड हेयर सेल्स टू एंड फ्रो. सो जो वेव होती है वो ट्रैवल करती है फ्लूइड की मदद से और बेंड हेयर की मदद से सेल्स के से आने और जाने के लिए. But the mechanical energy of the wave is converted into electrochemical impulse that are carried by the auditory nerve to the brain. लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वेव की वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के अंदर जो कैरी किया जाता है बाय द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन. जो ऑडिटरी नर्व उसको ब्रेन तक पहुंचाता है. Cutaneous sense की बात करें so the skin could be considered as a giant sense organs that covers the entire human body. So skin को अगर हम कंसिडर करें तो वो एक बहुत बड़ा सेंस ऑर्गन है, giant सेंस ऑर्गन है जो पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी को कवर करता है और जो ये कंसिस्ट करता है
प्रेशर एंड टच, यानी जो प्रेशर है हमारा, जो प्रेशर हम देते हैं वो, और जो हमारा टच है वो, टेम्परेचर और सेंसेशन को, और पेन को. सो जो हमारा स्किन है इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, प्रेशर एंड टच, टेम्परेचर, सेंसेशन, एंड द थर्ड वन इज द पेन यानी दर्द. प्रेशर और टच की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसनर और प्लक्सेस सर्व्स द प्रेशर सेंसेस इन द हेयरलेस रीजन ऑफ द बॉडी. सो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो उसको मेसनर कॉर्प्लेक्स सर्व्स कहते हैं. ये प्रेशर सेंस है और हेयरलेस रीजन बॉडी को इफेक्ट करता है. एंड द फ्री नर्व एंडिंग्स कन्वे टच इंपल्सेस. सो जो फ्री नर्व होता है वो अंत होता है टच इंपल्सेस के साथ, जो कन्वे किया जाता है. इसके अलावा सेंसिंग द टेम्परेचर की बात की जाए कि हम टेम्परेचर को, यानी जो टेम्परेचर है, जो ऊर्जा है, जो टेम्परेचर है उसको कैसे सेंस कर सकते हैं. सो टेम्परेचर हम 2 तरीके के सेंस करते हैं, एक ठंडा और एक गर्म. सो एक्सपीरियंसेस ऑफ कोल्ड एंड वार्मथ आर फेल्ट बाय द चेंजेस इन नॉर्मल ग्रेडियंट ऑफ द स्किन टेम्परेचर. सो जो अनुभव है हमारा ठंडे और गर्म तापमान को जानने का, महसूस करने का, वो जो स्किन का जो टेम्परेचर होता है उसमें मामूली से ग्रेडियंट में बदलाव होता है, जिस कारण से हम ऐसा अनुभव कर पाते हैं. और जो पेन होता है बेसिकली इट सिग्नल्स दैट समथिंग इज रॉन्ग इन आवर बॉडी. सो पेन, जो दर्द होता है वो एक्चुअली दर्द नाम की कोई चीज नहीं होती ह्यूमन बॉडी के अंदर. वो बस एक प्रकार के सिग्नल होता है जो हमारे बॉडी को एक निर्देश देता है, एक सिग्नल भेजता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारी बॉडी के अंदर. सो हमारी बॉडी के अंदर जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का सिग्नल हमारी बॉडी को पहुंचता है तो उसको कहते हैं हमें पेन हो रहा है. Then it comes to the sense of a taste. So sense हम कैसे करते हैं, टेस्ट का सेंस कैसे करते हैं. So जो 4 बेसिक टेस्ट आर, जो आमतौर पे 4 बेसिक टेस्ट हैं जो हम आमतौर पे सेंस कर पाते हैं, वो है सॉल्टी नमकीन, सॉर खट्टा, स्वीट मीठा, और बीटर यानी कड़वापन. सो आम ये 4 प्रकार के जो टेस्ट होते हैं इसको हम सेंस करते हैं. एंड पीपल पॉजेस 10,000 टेस्ट बर्ड्स. और जो आमतौर पे जो इंसान होते हैं वो करीबन 10,000 टेस्ट बर्ड्स पॉजेस करते हैं. अब स्मेल को भी हम सेंस करते हैं, यानी कोई बदबू, खुशबू आ रही होती है उसको भी हम सेंस करते हैं. सो इसके लिए हमारा ओल्फैक्टरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. सो द ओल्फैक्टरी सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कंपाउंड सस्पेंडेड इन द एयर. सो हमारे हवा में आसपास जो हवा बह रही है उस हवा के अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड सस्पेंड हो रहा है, मिला हुआ है, इसकी जो जानकारी है वो ओल्फैक्टरी सिस्टम हमें नाक को देता है, और जिस कारण से हम ये महसूस कर पाते हैं कि सुगंध या दुर्गंध क्या है. Then it comes to deep senses. Deep senses हम कैसे फील करते हैं. So the kinesthetic system, skeletal movement of the body through muscles, tendons and joints. So इस तरीके से हम कुछ सेंस करते हैं, हम चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाथ घूम रहा है, कोई काम कर रहे हैं. So all these senses is called as the deep senses. Whereas the vestibular system, another group of receptors located in the inner ear signal are the rotation of the head. So जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो रिसेप्टर का दूसरा ग्रुप होता है जो इंसान के अंदरूनी कान के हिस्से में लोकेटेड होता है, और जो रोटेशन होता है हेड का उसी पर डिपेंड करता है. कॉन्शसनेस की बात करें तो इट इज द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल. सो इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन कि जो कॉन्शसनेस होता है वो एक अवेयरनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट में जो अनुभव आपने किया है किसी इंडिविजुअल इंसान ने, उसकी जो अवेयरनेस आपको हुई है वो अवेयरनेस को हम कॉन्शसनेस का नाम देते हैं. एंड द लेवल ऑफ कॉन्शसनेस इज एक्चुअली द Freud, the founder of the psychoanalysis, believed that the human mind has 3 levels of consciousness. जो फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड, जो फाउंडर थे साइकोएनालिसिस के, उनका मानना था कि जो ह्यूमन माइंड है उसके 3 लेवल होते हैं कॉन्शसनेस के. और पहला लेवल जो होता है वो होता है द कॉन्शसनेस, जब इंसान पूरी तरीके से कॉन्शियस होता है. द सेकंड लेवल इज प्री कॉन्शसनेस, यानी कॉन्शसनेस के पहले की अवस्था. और जो तीसरा होता है वो होता है द अनकॉन्शसनेस, जब इंसान बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होता है. सो अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द साइकोएनालिसिस थ्योरी, द सिगमंड फ्राइड हैज believe that and have given that the human mind has 3 different level of consciousness: the consciousness, the pre-consciousness and the unconsciousness. Whereas if we discuss about the mind, brain and consciousness, अगर हम mind, brain और consciousness के बारे में डिस्कस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो mind है it is often considered a functional correlate of the brain. So जो mind है वो आम तौर पे consider किया जाता है ब्रेन के फंक्शनल कोरिलेट से. लेट्स कंप्यूटर एंड द ह्यूमन बीइंग्स. सम वेज कंप्यूटर मे बी कंसीडर्ड टू बी एज द सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी कुछ जगहों पर हम कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग से ज्यादा सुपीरियर कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं.
उदाहरण के लिए द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कुड बी मोर देन दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की याददाश्त होती है, यानी जो मेमोरी होती है, वो जो ह्यूमन बीइंग की मेमोरी है उससे ज्यादा होती है. On the other hand, human being is basically capable of serial processing. जबकि दूसरे हाथ पर जो human beings होते हैं वो basically capable होते हैं serial processing के लिए. उदाहरण के लिए, if you read a book which needs attention to grasp the material, you cannot listen to the music simultaneously unless the music does not require any attention. यानी कि आमतौर पर उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान को कोई किताब पढ़नी हो जहां पर आपको अटेंशन देने की जरूरत है उसके मटेरियल को समझने के लिए, तो आप उसी वक्त कोई ना कोई दूसरा म्यूजिक नहीं सुन सकते साइमल्टेनियसली जब तक कि आपको उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अटेंशन देने की जरूरत ना हो, है ना. वैसी म्यूजिक जहां पर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है वो तो ठीक है, बट अदरवाइज यू कैन नॉट लिसन द म्यूजिक साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर रीडिंग द बुक. So the most important difference between the two is that human being has consciousness whereas the computer does not. इसका मतलब है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों जब एक तरीके से काम करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों की जगह है. तो इसका मतलब है कि जो बेसिक जो बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है इन दोनों में, कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स में, वो ये है कि ह्यूमन बींग कॉन्शियसनेस को फील करता है, उसको अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, जबकि जो कंप्यूटर है वो कॉन्शियस नहीं होता, बिकॉज इट इज अ मशीन, इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग. Now at the end it again comes to the assignment what we have discussed so far. So initially we have discussed about the sense organs which is there in the human body. अलग अलग सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, परसीव कैसे करता है ब्रेन हमारा. जो हमारे सिगमंड फ्रेड की जो थ्योरी है साइको एनालिसिस की, उन्होंने कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस को कैसे डिवाइड किया है. फिर हमने रेटिना, रॉड्स और कोन्स के बारे में भी डिस्कस किया. हमारे कान की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जो मेजर डिवीजन होता है 3, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द क्यूटेनियस सेंसेस और अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स के, उसके बारे में भी डिस्कशन किया. सो यहाँ पर मैं एक एक करके सवाल जो आपकी स्क्रीन पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपकी मदद करेगी इस असाइनमेंट को पूरा करने में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, how is the stimulus perceived by the brain. कौन या क्या सेंस ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, what are the different sense organs, कौन कौन से अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं और कैसे, how is the stimulus perceived by the brain, और ब्रेन उन स्टिमुलस को कैसे परसीव करता है. दूसरा सवाल है डिस्कस ब्रीफली द फंक्शन ऑफ रेटिना, रॉड्स एंड कोन्स, यानी रेटिना, रॉड्स और कोन्स के फंक्शन को ब्रीफली डिस्कस करना है. Then what are the 3 major divisions of human ear, यानी कि इंसान के कान की जो मेजर 3 डिविजन्स होते हैं वो क्या है. और जो चौथा सवाल है what are the cutaneous senses, यानी cutaneous senses क्या है, and name them and describe their function, यानी जो cutaneous senses क्या है उसको जानना है. फिर जो cutaneous senses उनके नाम बताने हैं और उनके फंक्शंस को भी आपको डिस्क्राइब करना है. और ये सब असाइनमेंट आप आराम से तभी पूरा कर पाएंगे जब आप एक बार रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे उन टॉपिक्स को जो हमने ब्रॉडली इस सेशन नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया है, चाहे वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हो, आंखों के स्ट्रक्चर, रेटिना, रॉड्स, कोन से रिलेटेड हो, कानों की संरचना से रिलेटेड हो, विजन के अलावा जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है उससे रिलेटेड हो, या फिर डिफरेंट क्यूटेनियस सेंसेस से रिलेटेड हो, एवरीथिंग. सो व्हाट वी डिड, व्हाट वी स्टडीड अबाउट द साइकोएनालिसिस और द अदर थिंग्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द सेशन नंबर 4, ये पूरा असाइनमेंट उसी पे डिपेंडेंट है और बेस्ड है. सो आई होप जस्ट आप इसको रिवाइज कर पाएंगे और असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे. फाइन. सो आई होप एंड आई गिव यू ऑल द बेस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट. And this is going to be the end of session number 4. Thanks for joining this session. Have a nice day and do take care of yourself and complete this assignment. Thank you very much.